Hello dear students, welcome to the class today. How are you all doing? Hope you all are doing fine. Children, we are in the last phase of the revision of your this chapter. Today we'll be completing the revision because as per your requirement, we needed to discuss this chapter in detail. So from next class onwards, we will be starting with the revision work for your RT3. Got it, children? So this is the last video that you are seeing for before your RT3, which is covering the complete chapter, second chapter, Nationalism in India. इसके बाद the revision work that will be starting, children. Please understand, we are beginning with the RT3, so chapter-wise revision of those RTs will be happening. Okay, now children, the first thing that we have done last video where we had stopped, we were talking about please try to understand that we were talking about the causes of the failure of CDM. मैं आपको बोल रही हूँ, but please I request you don't use this terminology in your boards. The board examination, the boards, they do not accept these kind of short forms. It was just for your general interaction that we are having. I am using these short forms, or you can say these abbreviations. Last topic from this chapter which is left, dear children, and the question was asked in your pre-board from this topic, and no student has written any answers. Believe me, children, no student has written any answer. ठीक है, आई मीन नो स्टूडेंट मीन्स आप ये समझो कि अगर 149 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से हार्डली 20 स्टूडेंट्स हैव रिटन द आंसर. कलेक्टिव बिलोंगिंग, आप लोगों ने चैप्टर पलट के ही नहीं देखा है. चिल्ड्रन प्लीज बी सीरियस, गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक that is there in your chapters. You need to go through each and every topic. Please understand. नहीं करेंगे तो कैसे होगा? Got it? So what you need to do is, we are discussing this topic. Please note down the major points from this topic, dear children, so that you are in a comfortable position. So this is the sense of collective belonging. This is topic 4, sense of collective belonging. साथ में मिलके सारा काम करना है. Okay, collectively all the work needs to be done. And nationalism कैसे spread हुआ? How did nationalism spread? So, this is a big question. How did nationalism spread? Because it has spread. जब people begin to believe that they are all part of the same nation. Okay, nationalism तभी बढ़ेगा. अभी यहाँ पे I would like to give you the example of nationalism in Europe. Remember, common identity. Okay, when people start believing, वो उनको ये मानना पड़ेगा, begin to believe that they are all part of the same nation. That they are all part of the same nation. पहली चीज ये समझो ना, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, डियर चिल्ड्रन, कि कॉमन आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है.
आपके अंदर जब तक एकता की भावना नहीं होगी, till the time you do not have that feeling of unity, एकता की बात कर रहे हैं, तब तक आपको यूनिटी, तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. सम यूनिटी दैट बाइंड्स देम टुगेदर. ठीक है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन एंड कुछ तो ऐसा है जिससे लोगों को, लेकिन ये लोगों के दिमाग में ये बात कैसे पहुंचेगी? हाउ विल दे अंडरस्टैंड दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन? How did people belonging to different communities, region, language groups develop a sense of collective belonging? Okay, this was exactly the question that was asked. आपको यही क्वेश्चन पूछा गया था. मैं ये क्वेश्चन यहाँ लिखना चाहूंगी, that this is the answer for this question. Okay, now the next question is, how did people belonging to, please understand, they are the people who are belonging to different communities, regions or language group develop a sense of collective belonging. Got it? Collective belonging का क्या सेंस है? This was एकदम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, और बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन none of you answered. It was through the experience of unite. पहला तो क्या है कि इतने दिन से जो स्ट्रगल चलता आ रहा है, the struggle, my dear children, please understand, हम यहाँ पे तो इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, but then just for your kind information, just for your kind understanding, I would like to say the struggle which had started in 1857. 1857 में जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, it was through the experience of united struggles. First point is, it was through the experience of united struggles. सब साथ में मिलके इतने दिनों से, ठीक है, साथ में मिलके कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच नेशनलिज्म, ठीक है, इट वाज, पहला तो यूनाइटेड स्ट्रगल्स हो गया, दूसरा वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू variety of cultural processes, different, अलग अलग तरीके के, ठीक है, through which nationalism captured people's imagination, through which nationalism captured people's imagination. लोगों की सोचने की शक्ति, ठीक है, प्लीज, ये क्योंकि कल्चरल प्रोसेसेस है ना, ये कोई नई चीज नहीं है दैट वी आर डिस्कसिंग चिल्ड्रन. इट इज द सेम थिंग दैट हैड हैपेंड इन यूरोप. जो चीजें यूरोप में हो रही, अरे भाई ब्रिटिशर्स कहाँ से आए थे? ब्रिटिशर्स यूरोप से ही तो आए थे, डियर स्टूडेंट्स, डियर चिल्ड्रन.
तो जो लोग अपने वहाँ से आए हैं, अपना कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस लेके आए हैं, द पीपल हु हैव कम फ्रॉम देयर, तो कुछ तो हमको उनसे इंस्पिरेशन मिलेगी, कुछ चीज़ें तो हम सीखेंगे. सो वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस, द चेंजेस दैट हैड हैपेंड टाइम टू टाइम, नेशनलिज्म हैज कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन. सोचने की शक्ति होती. भारत माता है, बेड़ियों में जकड़ी हुई है, क्या सच में ऐसा कुछ है? नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं वैसा ही. वी आर इमेजिनिंग इन दैट वे. इमेजिनेशन. ओके. थर्ड पॉइंट इज हिस्ट्री. हाँ, यही क्वेश्चन था, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं देखा. हिस्ट्री एंड फिक्शन. ओके. फोकलोर एंड सॉन्ग्स. Folklore and songs. Popular prints and symbols. Popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism. Got it? All played a part in making of nationalism. The questions that are given in between the chapters, dear children, I am repeating the questions that are given in between the chapter. एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है. We cannot manage to leave any questions. That is important. ये बहुत ज़रूरी है समझना. ठीक है. हिस्ट्री एंड फिक्शन. अब सबका एग्जाम्पल देना है आपको. दिस क्वेश्चन हैड कम, दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स. डियर स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स. लिखा क्या है आपने? अंडा? कुछ नहीं लिखा है आपको. मतलब यू ऑल डिड नॉट टर्न दी चैप्टर एट ऑल. आपने चैप्टर देखने की कोशिश भी नहीं की. This is bad. I mean, you are appearing for board examinations, but your preparation seems to be NIL. NIL in capital. बिल्कुल nil है आपकी preparations. ठीक है. With lot of rejection and dejection, I'm telling this statement. History and fiction, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in the nationalism, making of nationalism. अब आपको एग्जाम्पल्स देना है. यहां से एग्जाम्पल शुरू होता है. ठीक है. ठीक है. मोस्ट ऑफन सबसे पहले हम फिगर और इमेज को इमेजिन करते हैं. मोस्ट पॉपुलर इमेजिनेशन, क्योंकि वी हैव टू कैप्चर द इमेजिनेशन. तो सो identity of nation is most often symbolized in a figure or image. Identity of a nation is symbolized in figure or image. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक फिगर बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं. अब हम इमेज के बारे में सोचते हैं. पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन. उस नेशन के बारे में वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द नेशन इन द फॉर्म ऑफ इमेज. भारत माता खड़ी हैं, भारत माता के हाथों में बेड़ियां हैं. अब ये क्या है? ये इमेजिनेशन है ना. रियलिटी में तो ऐसा नहीं हो रहा है. सो यू आर इमेजिनिंग अ फिगर और एन इमेज. So 20th century में nationalism बढ़ रहा था. Identity of India, it was visually associated with the image of Bharat Mata, like popularity of the image of Bharat Mata.
हम भारत माता को इमेजिन कर सकते हैं. ओके, कैसे? पहला इमेज, फर्स्ट एवर इमेज. नाउ दिस इज चिल्ड्रन नॉट हिस्ट्री. प्लीज लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर. अभी जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ हिस्ट्री नहीं, आप इसको समझो, इट इज जीके. ओके, सो द फर्स्ट इमेज वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. क्लास 10 का आंसर लिखने जा रहे हो. यू आर गोइंग टू राइट आंसर्स फॉर क्लास 10th और मजाक करते हो. हाउ कैन यू मेक फन? You all are not at all serious. Dear students, I am really telling you that be serious now. So the first image of Bharat Mata ठीक है, सबसे पहला किसने बनाया? Was made, created, made क्या? Created by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. नाम याद रखिएगा, स्पेलिंग मत मिस्टेक कीजिएगा प्लीज. ठीक है. एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ओनली in 1817 he wrote वंदे मातरम. ठीक है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. ठीक है, दिस इज जस्ट आई मीन ऑन अ लाइटर साइड, ऑन अ लाइटर नोट. प्लीज अंडरस्टैंड. कहाँ पे था? इट वॉज इंक्लूडेड इन द नॉवल आनंद मठ. ठीक है, wrote वंदे मातरम which was, प्लीज अंडरस्टैंड, ये सब जीके के पॉइंट क्यों से भी इंपॉर्टेंट है. और 10th क्लास का जब आप ये क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो उसमें आपको लिखना ही है which was included in the book आनंद मठ. स्वदेशी मूवमेंट में ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा, इट वॉज संग एवरीवेयर. एंड फ्रॉम स्वदेशी मूवमेंट इन्होंने भारत माता की एक पेंटिंग बनाई फॉर द फर्स्ट टाइम. स्वदेशी मूवमेंट में बंगाल में, यू नो, बंगाल एंड द पीपल फ्रॉम बंगाल आर वेरी फ्यूरियस. वो तो अगर कोई चीज़ ठान लेते हैं ना तो फिर उसको करके रहते हैं. एंड वेरी स्टूडियस, वेरी शार्प माइंडेड पीपल, द पीपल फ्रॉम बंगाल. Very sharp-minded. Please understand. The thought processes and the way of interaction. Okay, एकदम अलग तरीके का होता है. Next, it was painted. अब निंदा टैगोर, क्योंकि भारत माता की इमेज पहला तो उन्होंने बनाया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, लेकिन the one which became very popular, okay, the one which became very popular was made by Abanindranath Tagore. Abanindranath Tagore made the image of Bharat Mata. ठीक है, many different forms में.
पॉपुलर प्रिंट्स में इट वॉज ऑलवेज प्रिंटेड. पीपल को इंस्पायर करना है ना, पीपल शुड गेट इंस्पिरेशन. It was painted by different artists. Devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism. अगर आप कंट्री से प्यार करते हैं, if you love the country, तो this kind of a nationalistic feeling has to be there. ऐसी नेशनल फीलिंग आनी चाहिए. और अगर ऐसी नहीं आ रही है तो आप प्लीज लुक एट दिस इमेज. लुक एट द इमेज ऑफ भारत माता. Got it? When you look at the image of भारत माता तो हो सकता है आपके अंदर ऐसी फीलिंग आए. डिफरेंट आर्टिस्ट were there. तो अलग अलग लोगों ने भारत, एक बेस मिल गया ना. वन बेस वॉज गिवन बाय अवनिंद्रनाथ टैगोर. डिफरेंट आर्टिस्ट were मेकिंग. ओके, अब नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखो. ठीक है, आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म also developed. ठीक है, it was developing through a movement to revive Indian folklore. Through a movement to revive Indian folklore. असली इंडिया देखना है, असली इंडिया समझना है तो गांव में जाइए. द रियल इंडिया स्टेज देयर इन द विलेजेस. फोकलोर ट्रेडिशंस वहीं से मिलते हैं. 19th सेंचुरी में दे स्टार्टेड folk tales were collected and it was sung by bards and the people who were moving from one village to other village to gather folk songs and legends. Folk songs आर ब्यूटिफुल. कभी कोई पुराने आप खाली फोक सॉन्ग टाइप कीजिए एंड यू विल बी गेटिंग प्लेंटी ऑफ फोक सॉन्ग्स. ओके, दीज टेल्स गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर. ओके, फोक सॉन्ग्स वेर sung by bard. Bard means the people who move from one place to the other place. गाने गा गा के पैसे कमाते हैं वो. And that is how that the message of nationalism was spread all over. Folk songs were sung by bard and folk tales and stories were collected. हर एक गांव की अपनी कहानी है, हर एक एरिया का अपना नेशनलिज्म है. ओके, व्हाट हैज बीन अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर. अरे अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में हमको कहाँ से पता चला? हाउ डिड वी नो? भाई ये कुछ ट्राइबल लोगों ने ही ये कहानियां बताई हैं. हाउ डिड वी नो अबाउट बाबा रामचंद्र? ये गांव के लोगों ने ही बताया है. प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसे नहीं पता चला है हमको. वी डिड नॉट नो अबाउट इट, सिंपली somebody had told us. ओके, तो ट्रेडिशनल कल्चर जो करप्ट हो गया था, डैमेज हो गया था, ब्रिटिशर्स ने जिसको खत्म कर दिया था, तो ये सारे इट वॉज नेसेसरी एसेंशियल टू प्रिजर्व द फोक ट्रेडिशन. सो इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व folk traditions. इन सारे ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करके बचा के रखना बहुत जरूरी है कि आपको यू मस्ट ऑलवेज फील हैव अ सेंस ऑफ प्राइड. जो चीजें बीत चुकी हैं उसको भूलना नहीं है, उसको याद रखना है. तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये जिम्मेदारी ली. आप पहले में अवनिंद्रनाथ टैगोर का नाम याद रखेंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम रखेंगे. नाउ रविन्द्रनाथ टैगोर. ठीक
ठीक है. He started himself began collecting ballets. Himself began collecting ballets. Okay. Nursery rhymes, myth, nursery rhymes, myth, मतलब इसको सारे को कलेक्ट किया इन्होंने एंड इसको सारे को बुक के फॉर्म में रिलीज किया. ठीक है. myth क्योंकि इन्होंने कलेक्ट किया, हिमसेल्फ बिगैन कलेक्टिंग, इन्होंने ये कलेक्ट किया. ठीक है. और इट्स रिवाइवल. इसको इस तरह से समझो कि मुझे अपने पास्ट के बारे में अगर जानना है, इफ आई वॉन्ट टू नो समथिंग अबाउट माई पास्ट, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एवरी एंड एवरी विलेज, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कोई किताब अगर है, मैं वो पढ़ लूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा. आई विल बी अंडरस्टैंडिंग. उसी तरह से मद्रास में नतेसा शास्त्री वॉज देयर. नाम सब याद रखना है. इन मद्रास नतेसा शास्त्री वॉज देयर. नतेसा शास्त्री. He was also a painter. Okay. 4-volume collection of, ठीक है, published 4-volume collection of Tamil folk tales. Tamil folk tales. फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया. साउथ में भी तो फोक ट्रेडिशंस रहे होंगे, साउथ में भी तो कल्चरल ट्रेडिशंस रहे होंगे. सो पीपल्स थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स लोगों तक पहुंचाना है, उसके बारे में ये इन्होंने किया. इसके बाद द इन्वेंशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राई कलर. सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के बारे में जब हम बोल रहे हैं तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है which is identifying our national identity, that is the tricolor flag. Okay, by 1921 Gandhi ji designed the Swaraj flag. By 1921 Gandhi ji designed the Swaraj flag. फ्लैग को देख के जो फीलिंग मन में आती है ना, वो बता ही नहीं जा सकते. ठीक है. एंड एक चीज और है, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. और इतिहास के बारे में जानना है ना. Carrying the flag, Gandhiji's, all these things that was there, Indians began to have a sense of proud, and from here started a new era. Got it, children? So sense of collective belonging में जो चीज़ें लिखनी थी वो बिल्कुल नहीं लिखा आपने. अब इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा and please try to follow it. Got it, children? Okay, thank you so much and all the best to you. I just wanted to show you some pictures. Students, just now we have completed this topic, the sense of collective belonging. Lot of points we have discussed. We have understood that how did the Indians develop a sense of collective belonging. क्या क्या चीज़ें किया उन्होंने. The question that we have discussed, एक तो ये picture है. This time you will be getting pictographic questions also. So this is the picture of बाल गंगाधर तिलक. उनको पोर्ट्रे बनाया गया. He is surrounded by symbols of unity. मतलब कि कितना यूनिटी यहाँ दिखाया गया है ये आप देखिए. लुक एट द बॉर्डर लाइन, लुक एट द बाउंड्रीज. ठीक है. ये जब देखेंगे तो आपको क्लियर होगा. अनदर इमेज दैट यू नीडेड टू सी इज चिल्ड्रन द भारत माता. लुक एट हर. इनका फेस कितना मतलब शांत दिखाया गया है.
भारत माता इज सो कूल एंड काम। ये चीज़ यहाँ बताने की कोशिश की गई है, वही चीज़ यहाँ दिखाई गई है। ठीक है, यही आपको दिखाना है, यही बताना है आपको दैट भारत माता, अवनींद्रनाथ टैगोर, ये ईयर भी याद रखिएगा, दैट अवनींद्रनाथ टैगोर हैज़ पेंटेड दिस इमेज इन 1905. Got it, children? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एक तो आपको ये समझना है। एंड इन्होंने किससे इंस्पिरेशन लिया था? लाइक राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा फ्रॉम इंडिया इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स दैट एवर एग्जिस्टेड। गॉट इट? इसके बाद नतेशा शास्त्री की ये आप पेंटिंग, फिगर ऑफ भारत माता। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ये पेंटिंग देख लीजिए, यहाँ पे भारत माता को दिखाया गया है। सिंबल्स आर ऑल्सो शोन हियर। बिल्कुल एक रिलीजियस तरीके से भारत माता को दिखाया गया है। ओके, लायन, एलिफेंट, ऑल ऑफ दीज आर देयर। तो ये जो फिगर्स हैं, ये बस मैं आपको दिखाना चाह रही थी। एंड लुक एट द विमेंस प्रोसेशन इज बॉम्बे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे लुक एट द कंडीशन, women have also participated in the procession. ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ चीज़ें थी। चिल्ड्रन, जस्ट गो थ्रू इट वंस एंड वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट पॉइंट्स इन द नेक्स्ट क्लास. Till then children, thank you so much and all the best to you.